हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस टीटीएफटीओ न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑप्टिक्स। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी दैट हाउ द लाइट प्रोपोगेट इन एनी मीडियम, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट हैपेंस टू द लाइट when it travels in water, liquid and any medium. So this is all about the topic which is related to the physics. Means you can say it is a branch of the physics which tells you about the propagation of light and method of propagation. So in this propagation we will discuss, these are the main three parts in which we will discuss about all these threes: reflection, diffraction and total interreflection, which describe about the light, that how the light propagate in any medium, यानी किसी भी मीडियम में लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है। तो तीन मेथड हो सकते हैं जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो के जरिए, जिसे हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और टोटल इंटर रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देन फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। कंसीडर द सरफेस एबी व्हिच इज पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड, सो बिकॉज द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस मोस्टली बाय द मिरर्स। और मिरर आपको पता है how much types? Well, lots of type mirror, but simply we are working here with the simple mirror, maybe concave, convex. This may be the type of the mirror which may work, which may help to the reflection. So reflection is the process. First we are discussing about the reflection in the mirror, especially taking the simple mirror. तो सिंपल मिरर जो होता है आपका एक ऐसा मिरर जो आप डेली घर पे यूज़ करते हैं। शायद इसके बिना आपका दिन होता हो, मेरा भी नहीं होता, आपका भी नहीं होता होगा। तो दिस वाज द पार्ट जिसमें एक सरफेस को पॉलिश किया जाता है अदर द मर्क्यूरी, वेपर्स और द एनी कलर, सो दैट द लाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस। दिस इज द नेसेसरी रिक्वायरमेंट दैट रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि कोई एक मीडियम ऐसा हो हमारे पास जिससे कि लाइट क्रॉस ना हो सके। ओके, सो व्हाट इज दिस? फर्स्ट वी ऑलवेज मेक इट नॉर्मल। दिस इज ए नॉर्मल लाइन। मीन्स नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक ऐसी लाइन जो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? सरफेस के। सपोज आई एम मेकिंग ए नॉर्मल लाइन हियर, दिस इज अ नॉर्मल लाइन। नॉर्मल, तो नॉर्मल मीन्स ए लाइन विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल हो गया। तो इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द नॉर्मल लाइन, द लाइन विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यू कैन से this is making how much angle? This is 90 degree. This is 90 degree angle. Okay, so first we make a line which is coming from any object. What is that? That is called incident. That is called incident ray. The ray which is coming from any object. Object आपका हो सकता है any source of light from which the light is coming. Maybe sunlight, maybe candle light, maybe any torch, or tube light, whatever you are using. So this is the object and the light is coming from that object is called the incident ray, which is striking on the point O. We consider point O. Okay, here is the angle I which is called incident angle. In short, you can say the angle between incident ray and the normal ray is called incident angle. Okay, so what will happen to this ray now? It will bounce back in the same medium and this is called reflected ray, and the angle made by this is called reflected angle. In short, you can learn what is incident ray, the ray which is coming from the source, that was the incident ray. This is clear in the diagram. Incident angle, the angle between the normal ray and the incident ray, that is the incident angle. If we talk about the normal, you know, the line which is always perpendicular to the plane is called the normal ray. Reflected ray, the ray which is going back, striking the surface. इन सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद जो रिफ्लेक्शन मिलता है उसी को हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल मींस एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड एंगल। इस इंसिडेंट को डिनोट किया अपने आई से और रिफ्लेक्टेड को डिनोट किया आर से। दिस इज द पैटर्न और सिंबल यू कैन लर्न। सो for this all about the reflection, there are two laws which are follows, which we call laws of reflection. Laws of reflection में नंबर 1 होता है आपका with the help of diagram. With the help of diagram you can learn. And what is this? Number 1, the incident ray.
incident ray, normal ray, and what is the third one? Reflected ray. You can say in the diagram all the 3 points: incident ray, that is the incident ray, that is the normal ray, and that is the reflected ray. Where all lying at point O. In one plane. यानी सारी की सारी लाइन्स हमारी सारी कहाँ मिल रही है? इंसिडेंट, दिस इज द इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, ऑल लाई इन ए सेम प्लेन. मींस यू कैन से all are lying at a one point, that is the point O. This is the first law of refraction. And the second say angle I is equal to angle R. Incident angle is always equal to the reflected angle. So these are the two laws of reflection. Whenever the reflection take place by the simple mirror, these two conditions always take place. Must be necessary condition. आप simply can learn by the diagram. Diagram आपको clear है, then you can learn it easily. Incident, normal, and reflected ray all are in the same plane, and the angle of incidence is equal to the angle of reflection. These are the two laws, common laws. Everyone should know about this and how it works. That was the all about simple mirror, which we are using at our home daily practice. आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन बनता है आपका, आप साइड में खड़े होते हैं, यू आर फेसिंग द मिरर, एंड यू आर फेसिंग द मिरर, यू आर द ऑब्जेक्ट, एंड द इमेज इज गेट जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू इन द मिरर. So this is all about reflection by the simple mirror. Talk about the concave mirror. Concave mirror एक ऐसा mirror, first of all we have to know the definition of this. सबसे पहले आपको definition याद करनी है कुछ कि concave कैसा बनता है, कैसी shape होती है, उसमें क्या क्या part होता है. तो first of all I am making just some part. Consider the circular part, sphere you can say. Sphere में हो गया, 3D में हो गया, circle होता है 2D में. तो first we are discussing that how a mirror of concave and convex can work. Okay, so there are some definition. Number one we are talking about is center of curvature. And what is the center of curvature? What is the definition of this? You can say by the diagram, it is the midpoint of the whole mirror which is situated on the line. यानी एक ऐसा पॉइंट किसी मिरर का एक मिडिल पॉइंट है जो कहाँ पे लाई करता है, एग्जैक्टली मिडिल में लाई करता है एक लाइन के ऊपर. दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर, व्हाट इज कर्वेचर? बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द पार्ट. एक ऐसा पार्ट है कर्व का. कर्व कैसा हो सकता है? कर्व लाइक दिस, कर्व लाइक दिस ऑल आर द टाइप ऑफ कर्व. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द होल मिरर व्हिच इज फोकस्ड जस्ट इन द मिडिल ऑफ द पॉइंट. यानी जो किसी भी सर्किल के या किसी मिरर के एक मिडिल में पॉइंट रखा होता है उसे आप बोलते हैं सेंटर. सेंटर किसका? ऑफ कर्वेचर. सेकंड पॉइंट आपने लिया पोल. सेकंड पॉइंट हो गया पोल. तो पोल कैसा पॉइंट है? पोल इज अ पॉइंट व्हिच इज सिचुएटेड सर्कमफ्रेंस पार्ट पे स्थित है और व्हिच इज आल्सो वर्किंग विद द एक्स लाइन. दिस इज द लाइन कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. यानी जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे कहाँ से मेजर करने वाले हैं? पोल से. पोल इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मिरर, मे बी कॉन्वेक्स और मे बी कॉन्केव, नॉट इन द प्लेन मिरर. थर्ड वन, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. Principal axis, no, this is the line which is can go ahead, the line which divided the whole mirror or mirror circle into parts. यानी कैसी लाइन जो आपके मिरर को, जो शेप कैसा है, सर्कुलर शेप है, उसे दो पार्टों में डिवाइड कर सकती है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा और डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं. एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी इमेज, एवरी पॉइंट, मेबी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, सारे के सारे आप कहाँ प्लेस होते हैं? All are placed at the principal axis. This principal axis is the line on which all the points are situated, and it can divide the whole part into equal parts. Number 4, you can go for the radius of curvature. What is radius of curvature? This is the radius of curvature. Radius, सर्कल की radius होती है. Same here. The distance from the center to pole. Center से pole तक की distance. This you can say that is the distance between center and the pole. That is called radius of curvature. What is that? Radius means radius in the circle, radius part. Curvature, why we take curvature? Because it is all out the part of curve. So that's why we take the word here curvature. Okay, that is the distance between the center of curvature and the pole is called radius of curvature. Number 5, we talk
here is a point here that is called focal point. फोकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है आपका जो सिचुएटेड है जस्ट बिटवीन द टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे. सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड फोकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जो पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिडिल पॉइंट में मे बी 5 सेंटीमीटर. इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक ऐसा मिडिल पॉइंट है जो कहाँ से मेजर करते हैं. हमने बोला डेफिनेशन में एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल. पोल से मेजर करेंगे, दैट इज द फोकल पॉइंट. आफ्टर दैट focal length. What is the length? This is the length, focal length. The length, you can say in the diagram, the length between the pole and the focal point. Focal point और pole के बीच का जो distance है उसे आप कहते हैं क्या? Focal length. Focal length आप देख सकते हैं, ये भी focal length हो सकती है, 4 होती है, लेकिन हम consider करते हैं every distance are measured from the pole. So these are the some common definition. There is no need to remember this. आप सिंपली याद कर सकते हैं with the help of diagram. If the diagram is just perfect for you, with the help of diagram you can learn all the definition. So I just prefer you कि आप केवल diagram याद करेंगे. diagram याद कर सकते हैं तो आप definition भी easily याद कर सकते हैं. But it's up to you कि आप कैसे याद रख सकते हैं. So that was the part. Center of curvature, pole, principal axis, radius of curvature, focal point and focal length. These are the 6 definitions which may ask in the exams. So common definition. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. बात करते हैं कॉनकेव मिरर की. कॉनकेव मिरर हमने बनाया एक ऐसा मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड. सिंपली डेफिनेशन देते हैं एक ऐसा मिरर क्योंकि किसका पार्ट है? कर्वेचर पार्ट है, क्योंकि हमने किस में से काटा है? इस पूरे पार्ट में से निकाल के हमने दिस बिकम ए कॉनकेव. एपरेचर हो गया, एपरेचर पार्ट हो गया. दिस इज कॉल्ड एपरेचर. यानी जो डायमीटर है आपकी AB, दिस पार्ट, this part several definition you can add this is the aperture. A point AB when cut it from a mirror part, that is called aperture. ठीक है, ओके. तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर जैसा आप याद कर सकते हैं शेप लाइक सी से. तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा कहाँ से होगा? लाइट यहाँ से टकराएगी, इसी मीडियम में पार्ट चली जाएगी, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस. इस पार्ट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस. यानी लाइट जो आएगी कहाँ सरफेस पे स्ट्राइक होगी? इनसाइड पार्ट पे. लाइट बाहर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि हमने बाहर से पॉलिश किया हुआ है. तो दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव मिरर. द मिरर व्हिच इज पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर. एक ऐसा मिरर जो पॉलिश किया हुआ है बाहर की तरफ से, उसे आप बोलते हैं क्या? कॉनकेव मिरर. सो ऑल द रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ऑन दिस साइड. ओके. So there are some situations here we will discuss here in one diagram जहाँ पे हम देखेंगे कैसे इमेज बना सकेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे. This we just assume a principal axis line so that we just note to the every time. So just we are considering here conditions about the concave mirror. So there are some rules for it. हमको कुछ रूल फॉलो करने हैं, तो रूल बनाते हैं, लिखते जाते हैं साथ में. रूल नंबर 1 आपका हमेशा कहाँ पुट करना है? आपको लेफ्ट में पुट करना है. पैटर्न वाला लाइन parallel to principal axis after reflection passes from focus. अभी देखेंगे, रूल पढ़ेंगे. रूल नंबर सेकंड, द लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. कौन सी लाइन? जो सोर्स से निकल के आ रही है. आफ्टर रिफ्लेक्शन passes from the focus. This is the second rule. And the third rule, just opposite to this, you have to convert them. The line passes from principal axis focus after reflection passes from parallel to principal axis. So this is the rule number third, which is just opposite to the second. कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है सोर्स से निकल के, तो क्या होगा उसका? रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी. इसका उल्टा करते हैं आप. याद करने का मेथड, दिस इज मेथड टू लर्न दैट इफ द लाइन इज पासिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. So simple how it works. We will just watch in the diagram. So I am just condition. There are 6 condition arises here. Condition of first I am making here. As we are discussing about the concave mirror, so concave mirror which is polished from outside. So there are some points we always make here, F, C. Okay.
पॉइंट हमें बना के रखने हैं, हमें आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्लेस एट इंफिनिटी, यानी जो ऑब्जेक्ट है आपने कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो फॉलो करेंगे रूल स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाइक कैंडल टाइप, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सनलाइट हो सकती है, बल्ब, टॉर्च, एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस द लाइट। तो उसमें से हम एक सोर्स लाइट का निकाला, हम ऐसे बाहर निकलता हुआ जा रहा है, जस्ट यू नो वेरी वेल, बिकॉज वी कैन नॉट एज्यूम ऑल द लाइट्स, सारी लाइटों को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पज जस्ट वी आर एज्यूमिंग 1 or 2 लाइट विच आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स बाय फॉलोइंग दिस रूल्स। रूल वापस हमने फॉलो किया कि ऑल द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन लेफ्ट, आपने कहा मिरर के लेफ्ट में हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ओके सर, लेफ्ट। रूल नंबर फर्स्ट फॉलोज, यस, ओके। रूल नंबर सेकंड, लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट जो निकलेगी आपकी कैसे निकलेगी, parallel to principal axis. This is the line parallel to principal axis, and this when the light coming from the source, first this will have the principal axis parallel condition. Okay. After reflection, passes from focus. रिफ्लेक्शन हो गया, कहाँ से निकली, फोकस से हो गई। रूल नंबर थर्ड आइए, लाइन पासिस फ्रॉम फोकस, फोकस से जाएगी तो क्या होगा, नीचे की फोकस से। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, जिसमें आपने देखा इमेज बहुत छोटा सा बनता है, तो नेचर लिखते हैं उसकी इमेज की, स्मॉल इन साइज, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होता है मीन्स इरेक्ट मीन्स होता है सीधा, और इन्वर्टेड मीन्स होता है रेसिप्रोकल ऑफ दिस इन्वर्टेड। तो स्मॉल साइज में बनता है, पॉइंट साइज बन सकता है अपने यहाँ पे, और छोटी इमेज बनती है। There is no need to remember the laws or table, just you just follow the rules, you can make the diagram easily. So just I will suggest you कि हमेशा आप रूल फॉलो करेंगे, डायग्राम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ओके। रियल इमेज क्या होता है, द इमेज विच कैन बी गेट ऑन द स्क्रीन, और वर्चुअल क्या होता है, ऐसी इमेज जिसे आप स्क्रीन पे गेट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी गेट ऑन द स्क्रीन। आप देख रहे हैं, चले गए हॉल में, मूवी देख रहे आ रहे हैं, तो कहाँ देख रहे हैं मूवी, स्क्रीन पे देख रहे हैं, मीन्स विच इज गेटिंग ऑन द स्क्रीन। कैसी इमेज होगी, रियल इमेज। आपके स्कूल में क्लासेस में प्रोजेक्ट चलता है, यहाँ पे स्क्रीन पे चलता है लाइक दिस व्हाइट बोर्ड, कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। तो विच कैन बी गेट ऑन द स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, एंड विच कैन नॉट बी, दैट इज द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर, एंड दैट वाज द कंडीशन फर्स्ट। नाउ वी टॉक अबाउट कंडीशन फॉर सेकंड। केस सेकंड में आपका कि ऑब्जेक्ट आपने लिखा है बियॉन्ड सी, again P, F, C. Again we will follow the rules by making the concave always make a point pole, focal point and the center of curvature. So parallel to principal axis, passes from focus, parallel to principal axis. Again nature of the image, small size, real, inverted. This is the condition when the object is placed beyond the C, means center of curvature से थोड़ा सा पीछे रखा है। Then always remember use the arrow sign। जब भी आप डायग्राम बनाते हैं, सिंपल मेथड है कि एरो जरूर यूज करें, सो दैट पता चलेगा कि लाइट कहाँ जा रही है, कहाँ जाना है, कहाँ उसका रास्ता होगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर थर्ड। अगेन वी आर मेकिंग ए सिंपल डायग्राम जहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने रखा एट सी। थर्ड केस, we are making the object is placed at C, means center of curvature. Then place here C parallel to principal axis, passes from focus and passes from focus parallel to principal axis. Image and just made here. What is the same size, real and inverted. This is the pattern of the object when the place at C. Case number 4. Again concave mirror, P point, F point, C point. Between C and F. आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, C और F के बीच में रखा हुआ है। Parallel to principal axis, passes from focus, okay, focus, then goes there.
तो आपकी जो इमेज बनती है कहाँ बनती है, बिग साइज, मैग्नीफाइड निकल से, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स होता है उल्टा, क्या कैसे लगा था आपका, लेकिन इमेज कैसी बनती है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। ओके, केस नंबर 5 इंपॉर्टेंट केस, दैट इज कि पोल हो गया आपका, फोकस हो गया और हो गया सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है, पहला टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस फ्रॉम फोकस। अब रूल नंबर 3 है हमारा कि कहाँ से निकलना चाहिए, फोकस से। तो एक रूल नंबर 4 कहता है हमारा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, तो उसी रास्ते से वापस आ जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉलो कराएंगे, दिस गोस एंड दिस गोस, तो इमेज आपकी बनती है इंफिनिटी में। देयर इज नो पर्टिकुलर नेचर फॉर दिस, एज अ इमेज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी पॉइंट। ओके, द लास्ट ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F एंड P, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में। एवरी कंडीशन में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कमिंग क्लोजर टू द मिरर। ओके, between F and P, parallel to principal axis, passes from focus, and again we will follow the fourth rule, passing from center of curvature goes straight, but this is the condition in which the image is just formed behind the mirror. Behind the mirror means इसकी नेचर क्या होगी आपके पास, वर्चुअल, मैग्नीफाइड, इनएक्ट। The image is virtual and that is magnified, that is erect. This is the only condition when we mostly used in many practicals. यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, मैग्नीफाइड करना होता है। दिस इज द ओनली कंडीशन जहाँ पे इमेज जो बनती है वर्चुअल बनती है और एनलार्ज साइज हो जाता है, मैग्नीफाइड मीन्स लार्ज साइज, और वर्चुअल होती है बिकॉज बिहाइंड द मिरर बननी है। सो देयर आर द 6 कंडीशंस व्हिच फॉलोज बाय द कॉनकेव मिरर। So there are 2 conditions or 3 conditions take place in the convex. We will discuss in the next videos, and just continue get on these videos on my channel. Stay tuned and just like and subscribe if you don't, and just share to everyone.